read it again. See, the top view and front view of line AB measures 70 mm and 58 mm respectively. So what I will do is I will draw here the rough thing. Top view and front view. So this is front view. This is top view. This front view is how much? 58, and this is 70. The line AB is inclined at 35 degree to HP. So this line is inclined at 35 degree. So this angle is 35 degree. We don't know this angle. Alpha is unknown. End A is 15 mm over HP. So this is A dash. This distance is given as 15. This is A, and this distance is 12. So we have 5 things now. Let us see how can we solve the problem. So what are the 5 things that we know? We know the position of A in front view and top view, that is 15 and 12 mm respectively. Then we know the length of front view, we know the length of top view, and we also know the length of we also know the inclination of the line AB with HP, that is 35 degree. Now, as I told you just now, if this is the elevation length, if I rotate it here, what I will get? I will get elevation length, correct? And similarly, if I rotate this here, horizontal line, I will get plan length. Let me show it to you here. See, if I rotate the top view, I will get the plan length. Similarly, if I rotate the front view, I will get the elevation length. Is this clear to all of you? Yes, sir. Okay, so this sum will not be solved. How it will not be solved? It will not be solved like this. The way we do it. What we do? We draw this line inclined to HP 35 degree. Then we project it like this, and then we draw this. Then we draw like this and like this. Okay, this is the regular method. So that cannot be used because we don't know the true length. So this method cannot be used. Then what will we do? What will we do? We will draw it the way I explained you just now. Okay, so let us start drawing it one by one. So first I will draw XY line. Okay, so this is XY line. I will draw a rough sketch for you to understand, and then we can make it fair. First, position of A dash, and here we will get A. We know this distance is 15, this distance is 12. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सर थोड़ा ऊपर जा सकते सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ना था सर. ठीक है सर. आपने बोला ट्रू लेंथ नहीं दी है, तो फिर 70 और 58 क्या है सर? हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से करते हैं. The top view and front view of a line AB measures 70 mm and 58 mm. क्या है 70 mm 50 mm? टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का लेंथ है. तो यहाँ पे मैं बता दूं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का लेंथ मतलब कौन सा? दिस लाइन, ये दिख रहा है ना जिसके ऊपर फ्रंट व्यू लिखा है, इसका लेंथ दिया है, और ये जो टॉप व्यू लिखा है उसका लेंथ दिया है. जनरली क्या देते हैं हम उसको? ट्रू लेंथ पता रहता है हमको ना. वी जनरली नो दिस ट्रू लेंथ, and then finally we draw the front view. Okay, and we draw the top view. Okay, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे instead of giving the true length, front view और top view का length दिया है. सर वो 70 और 58 वो elevation length और plane length हो गया ना सर? हाँ करेक्ट. 70 और 58 ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लेंथ है, मतलब इसी को रोटेट करेंगे तो वो एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ हो जाएगा. ठीक है, मतलब अभी हम ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं ड्रॉ कर सकते. क्यों? वी नो द लेंथ, डू वी नो द एंगल? ये एंगल कितना है पता है हमको? अल्फा नहीं दिया है ना क्वेश्चन में. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? नो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट दीज टू डायमेंशंस आर गिवन. 70 एंड 58 दिया है, उसके बाद में ए का पोजिशन दिया है, एंड दिस 35 डिग्री इज गिवन. 35 डिग्री इज गिवन. 35 डिग्री क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द
लाइन ए बी विथ HP। मतलब क्या मतलब दिया वो है मैं ट्रू बताता हूँ। लेंथ के रिस्पेक्ट से ये है क्या करेक्ट, इंक्लिनेशन? ये जो ट्रू लेंथ हम ड्रॉ करते हैं उसका एंगल कितना है, थीटा। वो एंगल दिया है, ट्रू लेंथ भी नहीं दिया है। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग हियर व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। लाइन का नाम है ए बी, सो पोजीशन ऑफ ए इज गिवन, उसका 2 पॉइंट्स हो गया। टोटल हाउ मेनी पैरामीटर शुड बी नोन, 5 पैरामीटर्स, आउट ऑफ विच ए का पोजीशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू HP विद रिस्पेक्ट टू VP, तो 2 पैरामीटर्स हो गया। फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है, मतलब वी नो एलिवेशन लेंथ। टॉप व्यू का लेंथ दिया है, मतलब वी नो प्लान लेंथ। तो ये और 2 दिया है, मतलब टोटल कितना हो गया, 4 थिंग्स वी नो। और फिफ्थ क्या दिया है, फिफ्थ इज दिस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ दिस लाइन, जो ट्रू लेंथ का लाइन ड्रॉ करते हैं उसका एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू HP, मतलब ये 45 डिग्री एंगल दिया है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? सी नाउ, नो अगेन रेफरिंग टू दिस, दिस इज द फ्रंट व्यू, उसका लेंथ हमको पता है, बट वी कैन नॉट ड्रॉ दिस बिकॉज वी डोंट नो द एंगल। ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू, इसका लेंथ हमको पता है, बट वी कैन नॉट ड्रॉ दिस बिकॉज वी डोंट नो द एंगल। बट कैन वी ड्रॉ दिस एलिवेशन लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन? कैन वी ड्रॉ दिस प्लान लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन? yes students, Sir, can you Can repeat the repeat the question? question? समझा okay, नहीं। can we draw the elevation length? Elevation length is given as how much, 58 हाँ 58। सर। हाँ सर। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये ऐसा, हाँ हाँ सर। और हाँ ये सर, भी ड्रॉ कर हॉरिजॉन्टल सकते। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे वाला टॉप व्यू वाला। हाँ सर, 70 ना सर। हाँ 70। सो वी नाउ कैन ड्रॉ दिस लाइन ऑफ 58 mm लेंथ एंड दिस लाइन ऑफ 70 mm लेंथ। ठीक है, इतना करेक्ट हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट what we can do is we can rotate this, but we don't know what is the angle। कितना रोटेट करना पता नहीं, तो इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, पहले इतना ड्रॉ करते हैं फिर आगे देखते हैं। इतना ड्रॉ करते हैं। सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रॉइंग हियर दिस लेंथ, दिस इज हाउ मच 58 एंड दिस इज हाउ मच 70। मैं इस यहीं पे लिखता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, 58 and 70। now what this point will be, this will be B2 dash and this point will be B1 dash, sorry not dash, this will be B1। no you must be feeling it difficult to understand the notation। मैं बताता हूँ कैसे आया तो। ठीक है, यहाँ तक समझा, पॉइंट्स छोड़ दो। ये समझा 58 क्यों ड्रॉ किया, 70 क्यों ड्रॉ किया? हाँ सर, क्योंकि हाँ सर। हमारे पास एंगल नहीं था उसका रिस्पेक्ट। हाँ एंगल नहीं था, लेकिन ये एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। नो दिस वी विल रोटेट, दिस विल रोटेट लाइक दिस, दिस विल रोटेट हाउ मच वी डोंट नो, दिस विल रोटेट हाउ मच वी डोंट नो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा होगा? यस सर। सर दोनों सेम रहना चाहिए सर, कितना रोटेट किया दोनों। नहीं, दोनों सेम नहीं रहेगा ना। दोनों सेम क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो दोनों, ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा अलग अलग है, तो दोनों का रोटेशन भी अलग अलग रहेगा। मेरे को लगा सर हमें पता नहीं है ना, इसीलिए। हाँ पता नहीं है, पता नहीं है इसीलिए तो हम रोटेट नहीं कर पा रहे हैं ना। पता रहेगा तो ये तो मिल जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट ही मिल जाएगा ना B डैश। हमको पता नहीं है, तो वी नो दैट वी हैव टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस वी हैव टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इतना ही हमको पता है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। हियर वी हैव A डैश, हियर वी हैव A। नाउ दिस इज 70, ओके दिस इज 70। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसा, और यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लेंथ कौन सा होता है? ट्रू लेंथ होता है, ये समझा सबको? सर एक डाउट था सर, फॉर फर्स्ट वन सर, इधर एंगल 35 दिया है ना सर? हाँ वही, उसी का तो अभी तक एंगल 35 किसका दिया है? ये A डैश B डैश का नहीं दिया है ना। ट्रू लेंथ का देखो तो दिया है ना सर। देखो देखो, एक मिनट देखो, एंगल 35 किसका दिया है देखो,
ये 45 जो लिखा है मतलब हमारे लिए 35 है, करेक्ट? ये ट्रू लेंथ का दिया है, हमको ट्रू लेंथ पता है क्या? डू वी नो द ट्रू लेंथ? नो सर। नो No, सर, sir. बराबर। ट्रू लेंथ पता नहीं तो इस एंगल से लेके हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसका लेंथ पता नहीं। नो, पे अटेंशन हियर, व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट इज, वही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो, आई एम ड्राइंग दिस लाइन ऑफ व्हाट लेंथ आई डोंट नो, व्हाट इज द एंगल दैट आई कैन नो, दिस एंगल I know, this is 35 degree, and when this line is projected in top view I will get this as plan length equal to 70. See, this is clear or not? Have you understood this, all of you? Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट स्टेज रहता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज रहता है, इतना करेक्ट ना, फर्स्ट स्टेज रहता है। व्हाट वी डू, लेकिन फर्स्ट स्टेज में हम करते क्या है, वी नो द ट्रू लेंथ, सो वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस एट गिवन एंगल एंड देन वी ड्रॉ दिस। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको ड्रॉ किया एंड फिर इसको ड्रॉ किया, उल्टा किया। See, this gives the entire solution if you have understood this. So this is how we will start. So what will be the name of this point? Can anyone tell me? B1 dash. This will be B1. Is it clear? Yes, sir. Okay. So what will we do now? What will we do? This is what plan length. So what will we do is we'll project this like this in the front view. We'll project this in the front view. जैसे यहाँ पे किया. If I project it in the front view like this, and if I draw a line of what length I don't know, angle is 35 degree, it will meet this point. This point will be B1 dash, and on this line we will get the locus of B. So if I draw this line like this, and if I rotate this, it will meet here. When I rotate it, this is the point which is B dash. This is the front view. And what is the length of the front view? What is the length of the front view? 58. Have you understood this? Tell me, all of you. Yes, sir. सर हम लोग को एंगल नहीं मालूम था ना, तो कैसे रोटेट किया सर? हाँ, ये देखो, एंगल नहीं मालूम था ना, हमको ये तो पता है ये 70 है। हाँ हाँ एक्नोलेज करते जो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मुझे समझेगा नहीं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये तो पता है 70 है, ठीक है। इस ये लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका फ्रंट व्यू क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन लाइन का एंगल पता है हमको 35 डिग्री पता है, ठीक है। 35 डिग्री पे ये इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, B1 से स्टार्ट होगा ऊपर, देखो B1 से स्टार्ट होगा, इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका एंगल कितना होगा, 35। इसका ट्रू लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, बट हमको ये पता है कि ये B डैश और B1 डैश एक ही लाइन पे आता है। देखो यहाँ पर ये C डैश हाँ और समझा सर, C1 समझा। डैश एक ही लाइन पे आता है। हाँ? तो इसी तरह सिंस वी नो दैट दिस इज द लोकस ऑफ B, सो इसको हमने एक्सटेंड किया और इसको रोटेट किया टिल इट इंटरसेक्ट्स दैट locus line. So this point is B dash. ठीक है, now once we know the value of B dash, sorry, once we know the position of B dash, what can we do is we can draw a vertical line from where, कहाँ से ड्रॉ करेंगे vertical line, यहाँ से, see like this, where it intersects this line, wherever it intersects this line, इस कर्व को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, this is the point B, this is the point B. So we can now join this point is what, B, this is A. मिल गया? Now if you want you can rotate it,
Is it clear? So for understanding this, first I explained you what? First I explained you that elevation length equal to front view, then plan length is equal to top view. ये concept पूरा दिमाग में fit बैठना चाहिए. Unless and until you understand this, it will be difficult for you to solve any problem. But if this is clear in your mind, पूरा आंखों के सामने ऐसे दिखना चाहिए. अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम, अभी हमको और तीनों क्वाड्रेंट में घूमना है. ठीक है. सो दिस शुड बी फिट इन योर माइंड दैट थीटा कैसे मिलता है, अल्फा कैसे मिलता है, फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू और एलिवेशन लेंथ इक्वल होता है, टॉप व्यू और प्लान लेंथ इक्वल होता है. दिस थिंग शुड बी फिट इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ सम. नाउ व्हाट if it is difficult for you to understand, what you can do is you can keep this figure beside you. ऐसे एक फिगर ड्रॉ करके रखो, and then now you refer this figure. If it is difficult, okay, you can refer this figure for few sums till it fits in your mind that this length of front view is equal to elevation length, like this. There is one correction. सर 58 और 70 फिर वो फ्रंट लेंथ और टॉप ही हो गया ना सर, उसी का लेंथ हो गया ना. हाँ, ये हो गया एलिवेशन लेंथ, करेक्ट, और ये हो गया प्लान लेंथ. मतलब ये हो गया टॉप व्यू इक्वल टू 70 और ये हो गया फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 58. सो दिस 58 हैज टू बी इक्वल टू दिस 58 एंड दिस 70 हैज टू बी इक्वल टू दिस 70. अब ये छोटा दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है इसलिए, बट दिस इज रोटेटेड टू ऑब्टेन दिस पॉइंट. See if you have understood this. If you have in doubt, you can ask me. सर Yes. टॉप व्यू का ट्रू लेंथ वाला लाइन किधर है? हाँ, वो ड्रॉ नहीं किया मैंने, वो अभी ड्रॉ करते हैं. लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर इट. सर बट उसका एंगल नहीं दिया तो हम लोग कैसे बना सकते सर? इसका एंगल नहीं दिया है. जो अभी लाइन बोला सर, जो अभी देखो ना आपने जो ए डैश बी वन डैश बना है उसको अगर वैसा नहीं बना सकते ना सर? ए डैश बी वन डैश का एंगल दिया है ना? हाँ सर. ए डैश बी वन डैश का एंगल दिया है ना 35 डिग्री. हाँ सर ठीक है, समझा. ओके, नाउ टू ड्रॉ द रिमेनिंग पोर्शन. रिमेनिंग पोर्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? यू कैन प्रोजेक्ट इट हियर. So this angle is now phi and this is representing true length. This point will be B2. This is also representing true length. Clear हो गया? This angle is alpha. This angle is beta. I am not giving the arrows because space is not there. If you are using drawing book, if you have drawing book with you and if you have this solution in front of you, then only this can be done. See, this is the first sum that you are doing. Okay, this is the first sum. Unless and until you have some reference, you will not be able to do it. This is too easy. It is too easy, but it will take some time. If you solve 8 to 10 sums और 10 sums solve करने के लिए हर sum के लिए 5-10 मिनट लगेगा तुमको initially. Afterwards you can solve it in 2 minutes. Free hand तो 1 मिनट में हो जाएगा और ये ऐसा पूरा with the dimension solve करने के लिए 2-3 मिनट लगेगा सिर्फ. Believe me. But then you have to solve at least 8 to 10 sums. 1 या 2 sums में नहीं होगा. Okay. So if you have any doubt, you ask me here. If you don't have, we will move on to the next sum. नहीं सर, समझा. ठीक है. See now, I am going to tell you one new concept here, and that concept here is distance between end projectors. It is sometimes written as DBEP.
ठीक है, इस टर्म का मतलब समझा, DBEP मतलब डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, इसका मतलब समझो अभी। सी विच आर द एंड प्रोजेक्टर्स, दिस इज वन एंड दिस इज द रेड वन इज द सेकंड, रेड वन इज द सेकंड प्रोजेक्टर, क्योंकि इसके बाहर फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं है और इसके बाहर नहीं है, सो द फ्रंट व्यू टॉप व्यू लाइज बिटवीन दीज टू वर्टिकल लाइंस, सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एज द एंड प्रोजेक्टर्स, these two lines are called as the end projectors and this is the distance between end projector। ये समझा सबको? यस सर, समझा। DBP क्या लिखा है वो नहीं समझा सर, क्या लिखा है? क्या लिखा है ये लिखो, ये पढ़ो क्या लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, so sometimes this distance will be given, see there are so many distances which can be given। अभी हमने ये सम लिया, इसमें देखो कुछ और दिया है, अभी हम दूसरा सम लेने वाले हैं, इसमें और कुछ दूसरा डिस्टेंसेस दिया है। only 5 parameters are needed to solve any sum on projection of lines, 5 parameters। okay, so out of around 12-13 parameters, any 5 parameters can be given। see, this can be given, if this distance is given then also you should be able to solve। ओके, तो ये सम अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये सारे सम्स में सॉल्व करके तुमको देने वाला हूँ। यू हैव टू गो थ्रू दिस सम्स, ओके, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सम्स एंड अनलेस एंड अनटिल यू गो थ्रू ऑल, आई विल आल्सो गिव द सॉल्यूशन, आई विल आल्सो गिव द स्टेप्स। बुक्स में जो सम्स है उसको मैंने PDF में कन्वर्ट किया, वो मैं भेजूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस सम्स, क्योंकि बेसिक सम मैंने एक्सप्लेन किया, एवरी सम इज लाइक दिस and I can explain all the other sums also, that's not an issue, but unless and until you understand it on your own, it will be difficult for you। ठीक है, अभी एक नया सम लेते हैं, तीसरा सम लेते हैं, देखो इसमें कितना समझते हैं तुमको, देखो। तो लेट मी राइट द सम। द फ्रंट व्यू, you write this sum of a straight line the front view of a straight line AB is 60 mm long and inclined to XY line at 60 डिग्री। सी इतना ही क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले, आगे क्वेश्चन मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इसका मतलब समझ लो। What is the meaning of this? The front view of a straight line AB is 60 mm long। देखो यहाँ पर, if I draw it here, then what will we do? We first draw this line and then we draw like this। See, मैं basic sum draw कर रहा हूँ, लाइन का नाम AB है। So सर अभी हमें फ्रंट व्यू के रिस्पेक्ट से दिया हुआ है ना सर एंगल 60 डिग्री, मतलब हम फ्रंट व्यू को मालूम है ना हमको कितना रोटेट करना होगा। हाँ हाँ, समझते हैं हम, एक बार समझ लेते हैं इस सम को। मैं फिर से पूरा सम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बेसिक, अभी पूरा सम कंप्लीट नहीं लिखा है, लिखा क्या है उसका मतलब समझने के लिए ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट वी डू इज, दिस इज ट्रू लेंथ, दिस पॉइंट इज B1 डैश, दिस एंगल इज थीटा। व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज ऑल ऑफ यू शुड नो द प्रोसीजर। दिस इज व्हाट वी डू एंड देन व्हाट वी डू, देन वी ड्रॉ दिस व्यू। ओके, इसका एंगल कितना रहता है, 5। व्हाट वी गेट हियर, B वाला पॉइंट है तो B2, देन वी प्रोजेक्ट इट हियर एंड हियर वी गेट B2 डैश। दिस इज कॉल्ड एज elevation length, this is called as plan length, and then we draw the locus line of B1 and locus line of B2, and then what we do, we rotate these two lines, we rotate it like this in this direction, and we rotate this in this direction, and finally we get the front view like this, we get the front view like this, and we get the top view like this। So this is the procedure। Now what is given, the front view of a straight line AB is 60 mm long, so what is this length is given, this is how much, 60। have you understood this? This length is given 60 mm and inclined to XY line at 60 degree। who is inclined to XY line, this front view is inclined to XY line at 60 degree, so
60 degree is equal to alpha and 60 mm is equal to front view. That also means that 60 mm equal to elevation length. इतना समझा है कि नहीं समझा, बताओ मुझे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। सर 60 mm तो ट्रू लेंथ था ना? किसने बोला बेटा ट्रू लेंथ? कहाँ पे दिखा तुमको ट्रू लेंथ? पढ़ो क्वेश्चन को। मैंने पहले लेक्चर से यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। देखो पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन, तुम भी पढ़ो मेरे साथ। द फ्रंट व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 60 mm। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? फ्रंट व्यू का लेंथ 60 mm है, और जो तुमने समझा वो मैं दिखाता हूँ क्या है। वो उस दिन मैंने बताया था। See, a line BC 80 mm long. तो 80 mm long क्या हुआ? उसका ट्रू लेंथ हुआ। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लाइन BC 80 mm long, इसका मतलब होता है लाइन BC का लेंथ कितना है? 80 mm। इसका ट्रू लेंथ कितना है? 80 mm। 80 mm इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है कि द फ्रंट व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग। क्लियरली यहाँ पे बताया कि फ्रंट व्यू का लेंथ 60 mm है। हाँ समझा सर, सॉरी। ठीक है, माय बैड। नहीं, नो इशू। ये कंफ्यूजन होने वाला है, मुझे मालूम है ये कंफ्यूजन होने वाला है। ओके, अभी तुमको समझा होगा, बाद में या फिर और भी स्टूडेंट्स को समझा होगा। लेटर ऑन व्हाइल सॉल्विंग इट दे कंसीडर दैट दिस इज द ट्रू लेंथ, और समटाइम्स ट्रू लेंथ इज कंसीडर्ड एज लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू। इसलिए केयरफुली रीड करो, हमको जाना नहीं है, घाई नहीं है। देखो मैं एक लेक्चर में एक या दो ही सम ले रहा हूँ सिर्फ, जबकि ऑफलाइन में हम 4 सम लेते हैं एक दिन में, एक लेक्चर में। ठीक है, तो आई एम टेकिंग दैट स्लो। द फ्रंट व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 60 mm। इसका मतलब वो फ्रंट व्यू का लेंथ 60 mm है। तो ये देखो, ये फ्रंट व्यू है, ये ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया हुआ लाइन फ्रंट व्यू है, उसका लेंथ 60 mm है। आगे क्या दिया है? एंड इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन एट 60 डिग्री। सी व्हाट इज इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन? व्हाट इज इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन? This front view is inclined to XY line. That also you have to understand. Angle given is not theta. Angle given is alpha, because everything is explained or talked with regarding to this front view. तो जब डिस्टेंस पे फ्रंट व्यू के बारे में बोला है तो क्वेश्चन का मतलब अगर हम समझेंगे तो एंगल दिया है अल्फा और थीटा नहीं। इज दिस मच क्लियर? किसी को भी डाउट है तो पूछो मुझे, कुछ भी डाउट है तो पूछो। No sir, clear. No sir. So I understand that each one of you have understood the meaning of this sentence, the confusion between true length and the length of the front view, and how this is drawn. Okay, आगे लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। The end point A is 12 mm above HP and 25 mm in front of VP। ये तो सबको समझ जाएगा। The end point A is 12 mm above HP। above HP मतलब कौन सी में दिखेगा? Which we will see it? See, all of you have understood the meaning of this. This distance is 12 and this distance is 25. Any doubt to anyone till here? No sir, no doubt. No sir. ठीक है, अभी लास्ट सेंटेंस। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन of the line if it is inclined to HP, if it is inclined to HP at 45 degree। ये क्या है 45 degree? Can someone tell me what is this 45 degree? Theta. Yes, this angle theta,
this is given now. Theta is given as 45 degree. Is the question clear to all of you? सर बट HP at 45 दिया तो सर मेरे को लगा हाँ। फाई आएगा सर. कैसे आएगा फाया? कैसे फाया आएगा? आयुष ना? यस सर. फाय तो हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू वीपी बोलते हैं ना. ये देखो यहाँ पे भी किया है, इसके पहले सब में भी हमने लिया है. अच्छा ओ सर सॉरी हाँ, सॉरी सर कंफ्यूज हो गया फाई- सॉरी. ये देखो फाय क्या है? टॉप व्यू में विद रिस्पेक्ट टू वीपी है ना. हाँ सर सॉरी सर समझा क्लियर हो. देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है, कोई कोई पेपर सेटर तुमको सीधा एंगल दे दे. ही मे नॉट गिव यू दिस, he may give you this value theta and alpha. Okay, you don't make the confusion because these are the standard angles notation. Standard notation से इसको confuse मत करो खुद को. Okay, so I think question is understood to all of you. What is given in the question is the front view length is given, the true length is not given, but the angle of that true length, ये जो true length draw करते हैं उसका angle दिया है 45 डिग्री. फ्रंट व्यू का एंगल भी दिया है और फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है. ये 3 पैरामीटर्स हो गया. फोर्थ इज दिस डिस्टेंस ऑफ ए इन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. दिस 5 डिस्टेंसेस आर गिवन. 5 डिस्टेंसेस आर गिवन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन समझा सबको? यस सर. Okay, so you understand that it is very much important for each one of you to understand the question. Now see, when I am drawing it, this I can draw. पहले मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ. देखो a dash a, this distance is 12, this is 25. All of you know this. I can draw a line. What is the angle of this line? Theta. And I know that this point is B1 dash, but I don't know the position of this point. इसका एंगल पता है, theta is equal to how much? 45 degree. But I cannot get the end point of this. End point मिलेगा नहीं क्योंकि मुझे उसका true length पता नहीं है. So I have drawn it till here and I have left it like this. इतना draw करके छोड़ दिया. Next what I know? I know that I can draw this line at 60 degree. So 60 degree पे I will draw a line like this. 60 degree. This is 60 degree. This is what? Alpha. And what is this? 60 mm. And alpha is equal to 60 degree. Are you understanding this? What I am doing? And what is this point? This point is B dash. इतना समझा सबको? हाँ. Now understand that locus will come on this line. Is it clear? This is locus of B. So what I will do? I will extend this line here. So this is which point? B1 dash. Clear? Yes, sir, clear. Now I am drawing this point A here. Correct? A का position. Now I will draw B. On which line? B will come on this line. On this line I will get B. I'm sure that it will be on this line only. ठीक है? कैसे पता चला मुझे? क्योंकि B dash और B एक ही लाइन पे आता है. Now this is the front view. What is the front view? A dash and B1 dash is the front view. ओके, आगे ड्रॉ करने से पहले किसी को भी ये डाउट है तो पूछो मुझे. गेट इट क्लियर हियर इटसेल्फ. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, किसी को समझा नहीं है तो पूछो यहाँ पे पहले. आई विल वेट फॉर अ मिनट. समझा सर. ठीक है, हाँ तो सर समझा. ठीक है, मैं सबको समझा ऐसे एज्यूम करता हूँ. नो व्हाट आई एम डूइंग इज सी A dash B1 dash. What is this? Front view. Front view किसका है? It is the front view of a line which is inclined to HP. Inclined to HP. Stage 1. Remember stage 1.
जब इंक्लाइन टू एचपी है तो फ्रंट व्यू ऐसे इंक्लाइन आएगा, तो टॉप व्यू कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम टॉप व्यू? लाइक दिस, एंड आई विल हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्टर. So if I project it like this, this point will be B1. I think it is clear to all of you. This is called as plan length, and if we rotate this, then what we get? We rotate it like this. कहाँ तक rotate करेंगे? Till it intersects this point. Why? Because this is going to give us which point? This point is B. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me change the color so that front to top view remains in the same color. This point is B. Now what you have to draw? You have to draw the other view. अदर व्यू मतलब इंक्लाइन टू वीपी जब रहता है तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम? इंक्लाइन टू वीपी रहता है तो कैसे ड्रॉ करते हैं? देन वी विल ड्रॉ दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड. This will join. So this point will be B2. This will be B2 dash. This angle will be phi. This entire angle will be beta. See if you have understood this, all of you. Yes, sir, understood. See, still there may be some students who have not understood, but they are not asking. But I have understood one thing, that compared to the earlier sum, this sum took less time to understand because slowly you are building it in your mind. Okay. सर एक डाउट था सर. हाँ बिल्कुल पूछो. सर वो पीएल आपने ऐसा कैसे एक लाइन ड्रॉ किया, वो एक कंफ्यूज हो गया था. प्लेन लेंथ वैल्यू सर. ये हाँ उसका वैल्यू नहीं दिया है ना सर. हाँ, तो ये पीएल है ना, इसका वैल्यू नहीं दिया है, बराबर है. हाँ सर. अभी हम जाते हैं बेसिक सम की तरफ. Every time when you will ask me question, I will take you to the basic sum because this is what you have to understand. ये PL है, ठीक है. ये PL कैसे ड्रॉ होता है? फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल टू HP. इसका प्रोजेक्शन जब लेंगे हम यहाँ पे तो हमको PL मिलता है. सेम थिंग वी हैव डन हियर. ये इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया, कितना एंगल पे? जो एंगल दिया है इंक्लाइन टू HP, इसका प्रोजेक्शन लिया तो PL मिला है यहाँ पे. एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट? दिस इज EL. हाँ हो गया सर, थैंक यू. Students, I am again telling you that you practice at least these 3 sums which I have taught to you. उसी सम को तुम सॉल्व करो 1 घंटे 2 घंटे के बाद, जब भी टाइम मिलेगा फिर से सॉल्व करो. You should take at least maximum 5 minutes only to solve this. ये सॉल्व करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट्स. The top view of a 80 mm long line AB is measures 50 mm. Can anyone tell me the meaning of this sentence? Sir, true Sir, length is 80 mm. True length is 80 mm and 50 mm is that PL. 50 mm is length in top view. okay, length in top view is equal to
इक्वल टू PL. PL. ठीक है, ये याद होना चाहिए, लेंथ इन टॉप व्यू इज इक्वल टू PL. मतलब इतना देने के बाद यू कैन ड्रॉ दिस लाइन PL लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सब लोग. और इस लाइन का लेंथ भी हमको पता चला, इंक्लाइंड लाइन का, और इस इंक्लाइंड लाइन का लेंथ भी पता चल गया. व्हाट इज इट? इट इज 80 mm. Then point A is 50 mm in front of VP and 20 mm above HP. देखो इसका मतलब समझा कि नहीं सबको? Read this sentence and understand the meaning. सर वो लाइन का मतलब क्या है? पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ 50. ओके, पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP चाहिए आपके, माय मिस्टेक. VP इन फ्रंट मतलब VP होना चाहिए वहां पे. So 5 points are given here. You can draw the front view and top view now. Question is draw the projections. So we have XY line. Top view is known to us. Then point A is 15 mm. See here. Point A is 50 mm in front of VP. Students will definitely make mistake here. उनको लगता है कि पहले HP रहता है और फिर VP रहता है, हमेशा ऐसे रहता है. लेकिन यहाँ पे they have changed the question here. The point A is 50 mm. पहले इन फ्रंट ऑफ VP दे दिया और फिर अबव HP दे दिया. जनरली अबव HP पहले रहता है, इन फ्रंट ऑफ VP बाद में रहता है. Okay, so you have to look at this point A in such a way that this is A 50 A dash and this is 20.